हेलो बच्चों, वेलकम टू बोलो फिजिक्स क्लासेस। बोलो फिजिक्स क्लासेस का स्वागत है। हमारा चैनल में विद इन लिटिल टाइम में पूरा चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यूज एंड स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द जेई मेंस एंड नीट एस्पिरेंट। ठीक है बेटा, टुडे आई विल गोइंग टू स्टार्ट द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, what is the center of mass? Center of mass means the total mass of the body assumed to be concentrated at certain point inside in the body is called as the center of mass. The center of mass may be lies within the body or outside the body. ठीक है, suppose consider a discrete particles beta. Center of mass of discrete particles. Discrete particles. Suppose consider a system of discrete particles, a particle of mass m1 which is at a distance of origin r1, and the second one of the particle of mass m2 which is at a distance of r2. ठीक है, this is a third particle of mass m3 which is at a distance of r3 and so on. Let be a nth particle mn which is at a distance of rn from the origin. The center of mass of the system can be written as what is that rcm is equal to m1 r1 plus m2 r2 plus and so on plus mn rn upon m1 plus m2 plus and so on plus mn. This is the center of mass of the system. Suppose these particles are lies on the x-axis. X-axis, a particle of mass m1 which is at a distance of x1, another particle of mass m2 which is at a distance of x2 from the origin and so on. Consider nth particle which is at a distance of xn. So the center of mass of the system can be written as what is that beta? Xm is equal to sigma I is equal to 1 to n mi xi upon sigma I is equal to 1 to n to mi. Similarly, along the y-axis कैसा लिखना पड़ता है? बोलो, ycm is equal क्या हो जाता है बेटा? sigma I is equal to 1 to n mi yi upon sigma I is equal to 1 to n into mi. Similarly along the z-axis direction कैसा लिखना पड़ता है? zcm is equal to sigma I is equal to 1 to n mi zi upon sigma I is equal to 1 to n into mi हो जाते हैं. This is the center of mass along the z-axis direction. Next, moment of mass of the particles or moment of mass of the center of mass can be written as moment of mass of law. So what is the moment of mass of law? mr is equal to constant हो जाता है बेटा. इससे m1 r1 is equal to m2 r2 हो जाता है. m1 r1 is equal to m2 r2. Suppose consider two particles of masses m1 and m2 which are lies on the axis at a distance d. The center of mass is always lies nearer to the heavier mass. Imagine that here m2 is greater than to m1 है बेटा. ठीक है, इसका डिस्टेंस क्या हो जाता है? x हो जाता है. रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हो जाता है? d माइनस x हो जाता है. ठीक है, और इसका दूर r1 ले, इसका दूर r2 ले. r1 इसको क्या लिखना पड़ता है बेटा? m2d अपॉन m1 प्लस m2 कमा r2 इसको क्या लिखना पड़ता है? m1d अपॉन m1 प्लस m2 वो मास ला अप्लाई करो. ठीक है, लिखो.
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज, दैट मीन्स कंटिन्यूअस मास सिस्टम है. ओके, if the system would be in the form of a discrete particles, directly we can use xm is equal to m1 x1 plus m2 x2 plus and so on upon m1 plus m2 ऐसे use करना पड़ता है. If the system is not in the form of a discrete, it would have the continuous distribution of the mass. So how can you have to calculate the center of mass of the system? देखो बेटा, सपोज कंस्ट्रेंट है बेटा, एक रॉड है, ठीक है. द रॉड हैज अ मास m एंड लेंथ l है बेटा, ठीक है. इधर ऑरिजिन पर इधर ऑरिजिन ले 0, 0, इधर x इज इक्वल 0 हो गया, सेकंड एंड का x इज इक्वल टू l हो गया. सपोज इट हैज अ लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा बेटा, लैम्डा, ठीक है. इट इज वेरिंग विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ द रॉड. ओके, इट इज वेरिंग विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ द रॉड. सो इससे क्या करना पड़ता है, फर्स्ट एक स्मॉल एलिमेंट लो, इसके ऊपर रॉड के ऊपर एक स्मॉल एलिमेंट लो, इसका मास dm है, विड्थ dx. Therefore, the linear mass density of the rod would be the remains constant. That is lambda is equal to m upon l is equal to dm upon dx हो जाता है बेटा. dm is equal to lambda into dx एक फॉर्मूला है. Suppose if the lambda is given in the given problem, we have to use this formula. If the m is given in this given problem, we have to use dm is equal to क्या हो जाता है बोलो, m by l into dx. वो dm mass ऐसा लेना पड़ता है. Okay, therefore the central mass of the system would be xcm is equal to integration of x dm upon integration of dm हो जाता है बेटा. That is xcm is equal to integration of x dm means lambda into dx upon integration of lambda into dx हो जाता है. This is the process of calculation of center of mass if the its linear mass density is varying with respect to its length. Okay, suppose consider एक object है बेटा, object से some amount of the mass निकल गया है. So how would be its center of mass it changes? देखो इधर, suppose consider है बेटा, एक डिस्क है, इसका डिस्क, ठीक है. डिस्क ऑफ रेडियस कितने बेटा, सपोज r ले, डिस्क ऑफ रेडियस कितने, वो r है. डिस्क ऑफ रेडियस कितने बेटा, वो r ले. इसमें मैं क्या किया, r/2 का मास निकल गया, इससे इसमें r/2 का मास निकल गया, r/2 का मास निकल गया. That means what happening is that when the mass has to be removed, so from this object, then we can use the calculation of the center of mass. xm is equal क्या हो जाता है बेटा, m1 x1 minus m2 x2 upon m1 plus m2 हो जाता है, ठीक है. Suppose we have added some amount of mass, some amount of the mass has to be added. In the second case में some amount of the mass has to be added. So in this case we have to use calculation of center of mass of the system is xm is equal क्या हो जाता है बोलो, m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2. एडिशन के लिए वो फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन के लिए वो फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, ठीक है. देखो बेटा, नेक्स्ट देखो बेटा, द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंटिन्यूअस एक्सटेंडेड बॉडीज. फर्स्ट वन इज हेलोकोन दिया बेटा. हेलोकोन का सेंटर ऑफ मास कितने दूर रहते हैं, h/3 फ्रॉम द बेस है. ऊपर से कितने दूर रहते हैं बोलो, h minus h/3, that is equal to 2h/3 from the vertex. From the vertex से कितने दूर पर रहते बेटा, 2h/3. नेक्स्ट सॉलिड कोन. सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द बेस इज h/4. फ्रॉम द वर्टेक्स से कितने दूर रहते बेटा, h minus h/4, that is equal to 3h/4 दूर पर रहते हैं. From the vertex the center of mass would be at a distance of 3h/4 from the vertex. Next, an arc shaped object है बेटा. The arc shaped object का center of mass at the center of curvature is given by, what is that, center of mass at the center of curvature is given by 2r sin alpha by 2 upon alpha है बेटा, where alpha is called as a radius of curvature. Next, solid hemisphere
For a solid hemisphere, the distance of center of mass from the center 3r upon 8 है बेटा. Next semicircle of radius r है 2r by pi हो जाते हैं. Because of for the semicircle theta alpha is equal कितना हो जाता है बेटा pi हो जाता है. वो इसमें लागो the center of mass क्या मिल जाता है इसका center of mass 2r sin alpha by 2 means pi by 2 upon क्या हो जाता है बेटा pi मिल जाता है. That is equal to 2r by pi हो जाता है. Next when a disk is in the form of an sector है बेटा the center of mass from the O to the distance of center of mass from the O to and the center of curvature is given by 4r sin theta by 2 upon 3 theta हो जाते हैं. For a hemispherical shell का the distance of center of mass कितने दूर पर रहता है from its center to at a distance of r by 2 ऊपर नीचे से ऊपर से भी सेम हो जाता है. r minus r by 2 मीन्स कितने मिल जाते हैं बेटा ऊपर से r minus r by 2 कितने मिल जाते हैं वो भी r by 2 मिल जाते हैं. ठीक है ऊपर से एंड नीचे से सेम रहते हैं. ठीक है लिखो बेटा. एक प्रॉब्लम देखो बेटा. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2024. बहुत आसान प्रॉब्लम है बट इम्पोर्टेंट मॉडल है वो. ए यूनिफॉर्म थिन मेटल प्लेट ऑफ मास 10 kilograms. इसका सारा मास दिया 10 kilograms विथ डायमेंशंस आई शोन द फिगर डायग्राम में दिए बेटा. द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द प्लेट्स क्या दिए इधर n upon 9. द वैल्यू ऑफ n निकालना पड़ता है इसमें. ठीक है इसको देखो बेटा वो यूनिफॉर्म प्लेट है वो थिन मेटल प्लेट है. इसमें कितने पार्ट्स हैं इक्वल पार्ट्स कितने इक्वल पार्ट्स है बोलो 1 2 3 एंड 4 5 है. हर एक पार्ट का मास कितना हो जाता है बेटा वो 2 किलोग्राम है वो 2 किलोग्राम है. इसका पूरा 4 किलोग्राम हो जाते हैं. ठीक है वो भी 2 किलोग्राम है. इसका मास 2 किलोग्राम है. इसका सारा मास कितने हो जाता है बेटा दोनों पार्ट का 4 किलोग्राम्स हो जाते हैं 4 किलोग्राम्स. ठीक है अच्छा 4 किलोग्राम्स का सेंटर ऑफ मास किधर रहते हैं वो भी आइडेंटिफाई करना बेटा. इसमें एक्स एक्सेस कितने दिए बेटा 1 दिए. वाई एक्सेस कितने दिए बेटा 2 दिए. इसका सेंटर मास किधर रहते हैं x1 is equal to 0.5 हो जाते हैं. y1 is equal कितने बेटा 2 upon 2 is equal 1 हो जाते हैं. ठीक है और 2 किलोग्राम है और 2 किलोग्राम का सेंटर मास कितने रहते हैं बोलो 2 किलोग्राम्स का कोऑर्डिनेट्स 2 कामा 1 दिए. अच्छा इसका बोलो 2 कामा 1 दिए. इसका 2 कामा 1 दिए. सो xm इज इक्वल कितना हो जाता है बेटा xm दैट मींस x2 इज इक्वल कितना हो जाता है बोलो इधर 0.5 है प्लस 2 by 1 हो जाते हैं दैट इज इक्वल टू 1.5 हो जाते हैं. y2 इज इक्वल कितना हो जाता है बेटा y2 इज इक्वल टू 0.5 हो जाते हैं. अच्छा वो 4 किलोग्राम का सेंटर ऑफ मास कितना हो जाता है बोलो 4 किलोग्राम का सेंटर ऑफ मास. सो x3 इज इक्वल टू 2.5 कामा y3 इज इक्वल कितना हो जाता है बेटा 2 upon 2 कितना हो जाता है 1 हो जाता है. ठीक है अच्छा इससे xcm निकालना पड़ता है. xcm इज इक्वल बोलो व्हाट इज xcm. xcm इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 है बेटा. दैट इज xcm इज इक्वल कितने हो जाते बोलो m1 x1 m1 वैल्यू इज वो m1 ले दिस है m2 ले दिस है m2 इसका मास m3 ले m3. सो m1 x1 मींस 4 into x1 0.5 है बेटा 4 into 0.5 प्लस m2 2 into 1.5 प्लस अगेन 4 into x3 कितने x3 इज इक्वल 2.5 हो गए 2.5 अपॉन टोटल मास कितने बेटा 4 प्लस 4 8 प्लस 2 10 हो गए. दैट इज xm इज इक्वल बोलो 15 by 10 हो गए दैट इज इक्वल 1.5 है. सिमिलरली ycm निकालो ycm कितना हो जाता है बोलो ycm इज इक्वल बोलो बेटा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. ठीक है ycm इज इक्वल कितने मिलते हैं बोलो बेटा ycm इज इक्वल कितने मिलते हैं m1 y1 मींस 4 into 1 that is equal 4
4 प्लस m2y2 2 इंटू 0.5 है बेटा, दैट इज इक्वल 1 हो गया, प्लस m3y3 4 इंटू 1 दैट इज इक्वल 4 अपॉन 10 हो गया, दैट इज इक्वल टू 0.9 हो गया बेटा। बट दोनों को रेशियो दिए, x अपन y इक्वल कितने दिए बेटा, x अपन y इज इक्वल कितने आ गए बोलो, x अपन y इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 0.9 है, वो इसे कंपेयर करो, कितने हो गए 15/9 हो गए, तो n अपॉन 9 इज इक्वल कितने हो गए 15/9 हो गए, इससे n इज इक्वल कितने बेटा 15 आ गए। ठीक है, बहुत आसान प्रॉब्लम है, 2024 JEE में से पूछे। देखो बेटा और एक प्रॉब्लम देखो बेटा, वो भी 2024 JEE मेंस में पूछे, 2024 JEE मेंस से बेटा वो, the identical spheres each of mass 2m, two identical spheres each of mass 2m are placed at the corners of an right angle triangle with mutually perpendicular sides equal to 4 meters है बेटा, 4 meters दूर पर है each, taking the point of intersection of these two sides as a origin, the position of the center of mass of the system is 4√2 अपॉन x, द वैल्यू ऑफ x निकालना पड़ता है, वो भी बहुत आसान प्रॉब्लम है। राइट एंगल ट्रायंगल है वैसा, दीज आर द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसे है, ठीक है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ठीक है। व्हाट इज द आइडेंटिकल स्पेस ईच ऑफ मास 2m आर प्लेस्ड है बेटा, एक स्फीयर ऐसा लगा दिया, इसका मास 2m है, ठीक है, और एक स्फीयर ऐसा लगा दिया, इसका मास कितने बेटा 2m है, ठीक है। सो इसका दूर कितने बेटा 4m दिए, फ्रॉम द ऑरिजिन से, ऑरिजिन ले इधर, ऑरिजिन का ऑरिजिन से ले इधर, इधर भी क्या है, इधर ऑरिजिन ले, इधर ऑरिजिन है 0,0, इसको 4m है, ऐसा जा रहा है ट्रायंगल, ओके, वो भी क्या हो जाता है, वो भी क्लोजिंग साइड हो जाता है, ऐसा हो जाता है। इसका दूर क्या हो जाता है बेटा, वो y एक्सिस पर है, वो पॉजिटिव y एक्सिस पर है, पॉजिटिव y एक्सिस पर, इसका पोजीशन वेक्टर r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू 4j हो जाता है, r2 इज इक्वल टू 4j हो जाता है, इसका r1 इज इक्वल बोलो क्या हो जाता है -4i हो जाता है, बिकॉज ऑफ इट इज आल्सो हैज एट अ डिस्टेंस ऑफ कितने बेटा 4 मीटर्स पर है। वो दोनों का पोजीशन ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट लिखो, पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इधर, वो पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास कितने हो जाते हैं वो भी निकालना पड़ता है, इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 4√2 अपॉन x है बेटा, द वैल्यू ऑफ x निकालना पड़ता है। आज से हम कितने बोलो, पर m1 इज इक्वल कितने लियो बेटा, m1 इज इक्वल टू 2m, इसका पोजीशन वेक्टर r1 इज इक्वल -4 है, m2 इज इक्वल कितने बेटा, m2 इज इक्वल टू 4, दिस आल्सो 2m है, r2 इज इक्वल कितने बेटा, इसका पोजीशन वेक्टर +4j, ठीक है। सो RCM इज इक्वल निकालना पड़ता है, RCM इज इक्वल कितने m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। m1 वैल्यू कितने बेटा 2m इंटू r1 बोलो, r1 इज -4 है हो जाता है, प्लस r2 कितने बेटा, r2 इज 4j, m2 कितने 2m इंटू 4j अपॉन m1 प्लस m1, 2m प्लस 2m 4m हो जाता है ना। सो इसमें 2m कॉमन करो, क्या बच गया अंदर -4i प्लस 4j बच गया ना, बाई 4m है, ठीक है, 2m 2 से गेट्स कैंसिल हो गए, RCM इक्वल कितने मिल गए बेटा बोलो, -2i प्लस 2j मिल गए, ठीक है। बट इसका मैग्नीट्यूड कितने 4√2 अपॉन x, इससे x निकालना पड़ता है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटर ऑफ मास कितने हो जाते बोलो √4 प्लस 4 दैट इज √8 हो जाता है, दैट इज RCM इज इक्वल कितने हो जाता है बेटा, √8 मींस 2√2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करो, दैट इज इक्वल टू 4√2/2 हो गया, वो इसे कंपेयर करो 4√2 अपॉन x which is equal to 4√2 upon x is equal to 4√2 upon 2 है, इसे x is equal कितने बेटा 2 आ गया, ठीक है, बहुत आसान प्रॉब्लम है, लिखो
और एक प्रॉब्लम देखो बेटा, वही JEE 2024 में पूछे। In a system of two particles of masses m1 is equal to 3 kilograms and m2 is equal to 4 kilograms are placed at certain distance from each other. Okay. एक पार्टिकल ऑफ मास कितने बेटा, वो m1 ले, इसका मास m1 इज इक्वल टू 3 किलोग्राम से, और एक कितने m2 ले, m2 इसका मास 2 kilograms. दे आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस. कितने दूर में प्लेस किए बेटा? लेट्स टेक एट अ डिस्टेंस ऑफ x ले, एट अ डिस्टेंस ऑफ डेल्टा x और डेल्टा x पर लगा दिया दोनों का. ठीक है. नेक्स्ट फ्रॉम ईच अदर द पार्टिकल ऑफ मास m1 इज मूव टुवर्ड्स और पार्टिकल ऑफ मास m1 इसको क्या कर रहे हैं, मूव्स टुवर्ड्स m1 थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर से बेटा, 2 सेंटीमीटर लगा दिए. इन ऑर्डर टू कीप द सेंटर ऑफ मास of the system at the original position, m2 should be moved towards the center of mass by a distance. At what distance we should have to move towards the, what is that beta? x2 is equal to kitne? Okay. To keep the center of mass of the system is remains constant. At what distance m2 mass has to be moved towards the center of mass direction. देखिए कैसा करना, देखो वो बहुत परेशान दी है, इसमें कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम पर कुछ भी नहीं है, बट बच्चों का कैसा सोच रहे हैं, अरे इतना बड़ा है प्रॉब्लम कैसा करना. हाँ, तो क्या है, कॉन्सेप्ट भी याद नहीं हो रहे हैं, ऐसा सोचते हैं, बट ये बहुत आसान है. बोलो व्हाट इज दैट? हियर वी हैव ए वेरी सिंपल ट्रिक बेटा. व्हाट इज दैट? मास ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्या बेटा, mr इज इक्वल कांस्टेंट है ना, mr इज इक्वल कांस्टेंट, दैट इज m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 लगो. ठीक है. m1 कितना बेटा 3, r1 2, m2 इज इक्वल 2, r2 इज इक्वल कितने बेटा, r2 इज इक्वल x ले, x2 ले, 2 2 गेट्स कैंसिल हो गए, x2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. ठीक है. बहुत आसान प्रॉब्लम है, कितने टाइम लगा देंगे, खाली 30 सेकंड्स में हो जाता है, ऐसा सोचना पड़ता है. ठीक है. लिखो अगला प्रॉब्लम देखो बेटा, और JEE 2024 में पूछे. The distance of center of mass from one end of a rod having the linear mass density lambda is equal to lambda naught into 1 minus x square upon l square kilogram per meter. The length of the rod is equal to 3l upon the center of mass of the rod is equal to given by 3l upon alpha. The value of alpha, वो भी alpha निकालना पड़ता है बेटा. ठीक है. सपोज कंसिडर ए रॉड है बेटा. ठीक है. रॉड का वन एंड ए पर है, अदर एंड बी पर है. इधर x इज इक्वल 0 ले, इधर x इज इक्वल टू l ले. इसमें लीनियर मास डेंसिटी है, लैम्डा इज इक्वल टू चेंज हो रहा है, लैम्डा नॉट इनटू 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, ऐसा चेंज हो रहा है. ओके. दिस इज एक्सटेंडेड बॉडी है. एक्सटेंडेड मास का, एक्सटेंडेड बॉडी का सेंटर मास कैसे निकालना पड़ता है बेटा, बोलो. इसमें एक छोटा एलिमेंट लेना पड़ता है, इसका मास dm और विड्थ इज dx है ना. सो लैम्डा इज इक्वल बोलो dm अपॉन dx हो जाता है. dm इज इक्वल क्या मिल जाता है बेटा, लैम्डा इनटू dx, दैट इज dm इज इक्वल लैम्डा वैल्यू बोलो लैम्डा नॉट इनटू 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर इनटू dx आ गया. छोटा मास मिल गया बेटा. चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, द सेंटर मास ऑफ एक्सटेंडेड बॉडी इज xm इज इक्वल बोलो इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm बिटवीन द लिमिट्स ऑफ 0 to l. This is the center of length is 3l by alpha means what was asked, the center of mass of the system is given, what is that 3l by alpha, और इससे alpha निकालना पड़ता है. So xm is equal कितने बेटे बोलो, xm is equal to x है, dm is equal to lambda naught into 1 minus x square upon x square into dx हो जाता है बेटा. lambda naught कॉमन करो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to l x into x minus x cube upon l square into dx divided by integration of 0 to l. lambda naught कॉमन करो इसमें,
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाते हैं, ठीक है। इससे एक्सएम क्या मिल जाता है बेटा, बोलो। लैम्डा नॉट कैंसिल करो, इसका इंटीग्रेशन करो, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स पावर ऑफ 4 अपॉन 4l स्क्वायर बिटवीन द लिमिट्स ऑफ 0 to l divided by x minus x cube upon 3l square between the limits of 0 to l. This is called कितना हो जाता है बेटा, बोलो। 3l upon 8, इसे कंपेयर करो, is was given, that is equal to 3l upon 8 is equal to 3l upon alpha से कंपेयर करो, इसमें आराम से अल्फा निकालो, that is equal to 8, ठीक है। देखो बेटा, वो प्रॉब्लम देखो बेटा 2025 JEE मेन से पूछे, वो रिसेंट प्रॉब्लम है। ए सर्कुलर होल ऑफ रेडियस a/2 cut out of a circular disc of radius a as shown in the figure. The centroid of the remaining circular portion with respect to O will be is equal to how much? अच्छा, इसका क्या दिया, वो पूरा सर्कुलर डिस्क का दिया ना, वो पूरा सर्कुलर डिस्क है बेटा। इसका रेडियस कितने दिए, ये दिए। सो इट हैज द सर्कुलर डिस्क हैज व्हाट इज दैट सरफेस मास डेंसिटी, इसका मास m ले, दैट इज इक्वल सिग्मा इज इक्वल टू m अपॉन ये हो जाता है, दैट इज इक्वल टू m अपॉन पाई a स्क्वायर। इसमें क्या निकल गया बेटा, a/2 मास निकल दिया इसमें, a/2, इसमें कितने मास निकल दिए, a/2 मास निकल दिए, इसका मास m डैश लो, m डैश इक्वल कितना हो जाता है बेटा, सिग्मा इक्वल m बाई a, m इज इक्वल टू सिग्मा इंटू a डैश हो जाता है, सिग्मा इंटू a डैश वैल्यू कितना, a डैश इज इक्वल टू पाई इंटू a/2 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू m डैश इक्वल क्या हो जाता है, सिग्मा वैल्यू इसमें लगाओ, दैट इज इक्वल m अपॉन पाई a स्क्वायर इंटू पाई a स्क्वायर बाई 4 हो गए, पाई a स्क्वायर पाई गेस कैंसिल हो गया बेटा, दैट इज इक्वल टू m अपॉन 4 हो गए। अभी क्या निकालना पड़ता है, शो इन द फिगर द सर्कुलर डिस्क विथ रेस्पेक्ट टू सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड का विथ रेस्पेक्ट टू सेंट्रॉइड का सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ता है। सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता है बोलो, इसका दूर ये है ना, इसका दूर a/2, a प्लस a/2 इज इक्वल टू 3a/2 हो जाता है इसका सेंटर मास विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है। देयरफॉर xm इज इक्वल क्या निकलवा, xm इज इक्वल टू m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2, वो क्या है, सब मास निकल गए ना, इसका वो फॉर्मूला निकलना पड़ता है, m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2 है, दैट इज xm इज इक्वल टू m1 मीन्स कितने बेटा, m है, a1 मीन्स ये माइनस m2 इज इक्वल कितने m/4 अपॉन x2 इज इक्वल कितने बेटा, वो x2 है, वो x2 ले, x2 दैट इज इक्वल टू 3a/2 हो गए, ठीक है, अपॉन m माइनस m/4 हो गए बेटा, दैट इज xm इज इक्वल कितने हो गए बोलो, mea माइनस 3mea अपॉन 8 इज वॉट डिवाइडेड बाय 4m माइनस m, 3m अपॉन 4 हो गए बेटा, इसका वैल्यू बोलो कितने हो गए, 5a अपॉन 6, ठीक है। बहुत आसान प्रॉब्लम है, देखो बेटा।